Hello, 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 hello. Good morning. Yes, good morning to all, and my voice is clear to all of you. Yes, Okay. So in the previous lecture, we have discussed about all the coordinate system. Clear? Is it clear? So now, और उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था basically coordinate system के transformations means we have just discussed the transformation of Cartesian coordinate into cylindrical coordinate. Then we have discussed the cylindrical coordinate transformation into Cartesian coordinate. Clear? Means vice versa process. Then we have discussed the spherical coordinate transformation into Cartesian coordinate. Then we have discussed Cartesian coordinate transformation into spherical coordinates, and accordingly we have find the matrix representation. Am I right? समझ में आ रहा है सभी को? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Okay, so in today's lecture we continue with the numericals of those topics as well. Some topics I will also cover like differential length, area and volume. So I'm just going to share a file right now. Let's see. Okay. So you all are also requested to present yourself during the whole session. Clear? Otherwise, if somebody is only attending the class by joining and detach yourself by the class, then he or she will be absent. Clear? So your presence throughout is important. Clear? I am taking anyone's name at any time and ask anything. So if somebody is not responding at that time, then she or he will be marked as absent. Is it clear? समझ में आ रही सभी को ये बात? हेलो बेटा, ये समझ में आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ अभी? yes, sir. तो आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. अगर आप एब्सेंट होते हैं और मतलब आप सेशन ज्वाइन करके गायब हो जाएंगे, देन यू विल मार्क एज एब्सेंट. ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. ठीक है? सो एट एनी टाइम आई कैन आस्क एनीवन टू एनीथिंग. So your presence is important. Clear? So now again, ये फाइल मैंने शेयर किया, सभी को दिख रहा है? Is it visible to all of you? This file? Yes, sir. So now we continue with the next topic, that is the differential length, area and volume. Clear? So this is again a very you can say very important topic in this domain basically. Clear? And okay, so if I represent in the form of so if you see so इसमें हम लोग you see जो चीज़ें मेन हमारी इसमें कवर होंगी, जैसे कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल को हम इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? सो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ी बेसिकली. जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर एक लार्ज लेंथ एरिया है. क्लियर? सो एक अगर हमारे पास बहुत बड़ी एरिया है या बहुत बड़ी लेंथ है या बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और अगर आपको उस पूरे वॉल्यूम को कवर करना है, उसको कैलकुलेट करना है, then how you can calculate? So you need to just take the small strip, clear, and you will find that strip and you will just integrate that strip up to the infinite length. जहाँ तक कि उसकी लेंथ है वहाँ तक हम उसको इंटीग्रेट करके we can find the line integral, we can find the surface integral, we can find the volume integral. Clear? So
if you see a point in rectangular coordinate system basically is located by x y z, the coordinates आपको दिख रहे होंगे, clear? So we have x y z coordinates basically, clear? And just wait, I'm trying to note it this. Okay. प्रॉब्लम है इसमें नोटेशन में. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट हमने लिया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम पहले बात कर रहे हैं, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. इसमें हमारे जो लेंथ है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हैं, क्लियर? ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारी, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, क्लियर? तो एक्सप्रेशन डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम का हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इन द प्रीवियस स्लाइड. सो वही चीज़ यहाँ पे भी है. तो एक हम स्मॉल रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड ABCDEFGH हमने लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में. ABCDEFGH एक स्मॉल हमने एक तरह से स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ठीक है, पैरेललोपाइड का. As shown in figure, the sides of the parallelepiped have incremental length dx, dy and dz. इसमें हमने जो इसकी sides हैं, that are the incremental length of this, ये देख सकते हैं आप. This is dx, this is dy, and this is dz, and this is dy. This is the incremental length change. Clear? जैसे हमने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बताया भी था लास्ट टाइम, जो इंक्रीमेंटल लेंथ इंक्रीमेंटल लेंथ यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में देखें, या सिमिलरली आप अगर जेड डायरेक्शन में देखेंगे तो dz into az का है, ठीक है? तो हमारे पास जो कंप्लीट इंक्रीमेंटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ, दैट इज dx af का प्लस dy ay का प्लस dz az का, ठीक है? क्लियर? अब आप देख सकते हैं अगर f to h निकालते हैं आप, देखिए डायगोनल लेंथ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको f to h, ये दिस इज f to h, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं इस लाइन पे तो हमें क्या मिलेगा? अगर f to h निकालते हैं तो देखिए ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट, ये पूरा कवर होगा. मीन्स अगर हम डायगोनल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं तो इस डायगोनल लाइन का वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? दिस रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ EH प्लस HF. क्लियर? EH प्लस HF. तो EH आपका क्या है? DZ है, और HF क्या है? DY. ओ सॉरी, EF क्या है? DY है. तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका? जो ये लेंथ आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस विल बी, अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये FE इंटू AY प्लस EH इंटू AZ, FE इंटू AY हाँ प्लस EH इंटू AZ, क्योंकि ये Z डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन, ठीक है? तो DL क्या हो जाएगा? DY AY प्लस DZ AZ अलॉन्ग जो भी उसके डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होगा, उससे मल्टीप्लाई करते हुए हम ऐड कर देंगे. तो ये हमारा DL वेक्टर आ गया. अब अगर हम सिमिलरली F टू D निकालें, जैसे यहाँ से पूरा अगर हम ले लें D to F, ये देखिए दिस, इफ आई टेक इट फ्रॉम D to F, क्लियर? रिप्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को. सो इफ आई टेक इट फ्रॉम D to F, ये देखिए ये आपका D, ये जो आपका D to F अगर हम लेते हैं, दिस इज इफ टेकिंग फ्रॉम D to F, then what will be there? बताइए. अगर हम D to F लेंगे तो क्या आएगा? पूरा यहाँ डायगोनल लाइन फ्रॉम D to F, देन इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या आएगा? दिस विल बी द सम ऑफ D to A प्लस A to E प्लस E to F, देन इट विल गिव यू D to F वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? जैसे वेक्टर्स हम आप लोग को मैंने बताया है पहले भी, तो एक बार मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ. Just trying to share you. Just wait. आवाज आ रही बेटा सभी को? मेरी क्लियर आ रही है आवाज? हेलो, my voice is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Just wait. I'm just telling you by writing if it is possible.
Just wait. I think most of the students are connected now. Okay. Okay, so if you see what I want to tell you कि जैसे मैं इंक्रीमेंटल लेंथ की बात कर रहा था, तो पहले हमने जो लेंथ लिया वो इस पॉइंट से लिया था और कहां तक लिया था, एक मिनट, जस्ट वेट। ओके, हमने पहले लिया था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, इन दोनों का सम किया था, क्योंकि ये वेक्टर अगर हमें निकालना है, दिस वेक्टर, ये वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, इस वेक्टर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बताइए। व्हाट यू कैन डू, you will just do the sum of, you will do the sum of what, this vector plus this vector। तो ये हमने जब हेलो नहीं आ रही है, हेलो हेलो हेलो, आई थिंक Yes, sir. नेट इशू की वजह से बार बार ये स्लो हो जा रहा है। ओके, डी टू एफ अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डी ए इज ए डी प्लस ए ई प्लस ई एफ, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे। ए डी की वैल्यू क्या होगी, इफ यू टॉक अबाउट ए डी, ए डी आपका हो जाएगा जो आपका ये जेड एक्सिस है, डी जेड इंटू ए जेड, प्लस ए ई क्या हो जाएगा, ए ई आपका ये एक्स वाला एक्सिस है, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, अगर एक्स की बात करेंगे, ये देखिए ये एक्स है, तो ये जो हमारा ए ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज डी एक्स इंटू ए एक्स, क्योंकि इधर की साइड यूनिट वेक्टर ए एक्स है, पेन है और क्या चाहिए, इतना सब चीज लेके जा रहा है। हेलो, सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, Yes, sir, you are audible. नहीं, अपना माइक सभी लोग म्यूट कर दीजिए, अभी किसी की आवाज आ रही थी। ओके, इफ यू नाउ सी, ये हमारा हो गया डी एक्स इंटू ए एक्स कैप, और ये जो हमारा हो जाएगा ये डी वाई इंटू ए वाई कैप हो जाएगा। तो अगर हम इस वेक्टर को निकालेंगे, दिस इज द कंप्लीट वेक्टर, तो कंप्लीट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या होगा, मीन्स अगर डी टू एफ निकालना है तो दिस विल बी द सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। और ये वेक्टर हमारा कौन सा है, डी जेड है, क्योंकि जेड की डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल चेंज है, तो डी जेड इंटू ए जेड कैप, प्लस ए ई क्या है, डी, ये आपका डी एक्स है, डी एक्स इंटू एक्स ए एक्स कैप, और ई एफ क्या है, डी वाई इंटू ए वाई कैप। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका कंप्लीट यहाँ से डी से एफ तक इंक्रीमेंटल लेंथ चेंज आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से अगर हम इंक्रीमेंटल चेंज कंप्लीट देखेंगे तो हमको पूरा दिख जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज डी एल इज इक्वल टू डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप, ठीक है। अगर इसका मॉड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंटल चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं ड्यू टू एक्स वाई जेड डिफरेंशियल लेंथ चेंज। क्लियर। ऐसे ही सरफेस की अगर हम बात करें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में अगर हम सरफेस की बात करें, मीन्स अगर हमें सरफेस एरिया निकालनी हो, ठीक है, तो सरफेस एरिया में जो चेंज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये आप देख सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ds, ठीक है। ds इज द इंक्रीमेंटल चेंज इन सरफेस, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कैप इंटू ds, ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर आपको पता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड वैल्यू, क्लियर, या मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम एरिया का चेंज निकालते हैं, अब एरिया का चेंज आप कैसे देखेंगे, ये आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। जैसे एरिया निकालने में आपको एक एक सरफेस लेनी पड़ेगी, जैसे आप एक बार ये सरफेस ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे एरिया निकालनी है तो सरफेस की निकालना पड़ेगा, और किसी लाइन को तो देखेंगे नहीं,
तो पहले एक बार हमने ये सरफेस ले लिया जैसे, ठीक है, ये आगे का जो फ्रंट सरफेस है दैट इज व्हाट ABCD। एक बार हमने ले लिया ये वाला सरफेस जो साइड का है दैट इज व्हाट BCGF, एक सरफेस हमारा ये हो गया। और एक बार हमने ये ऊपर का सरफेस ले लिया, ठीक है, दैट इज AEFB। तो इन तीनों के अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो हमको उसके बाद ऐड कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंज इन एरिया अगर हम X, Y और Z डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, इन DSX, DSY एंड DSZ ये हम निकालेंगे, ठीक है। और अगर आप ये तीनों फ्रंट फेसेस की एरिया निकाल लेंगे तो अगर आप नीचे का निकालना चाहेंगे, जैसे इसका अपोजिट फेस क्या है, इसके नीचे वाला फेस है, इसका अपोजिट फेस क्या है, इसके पीछे का फेस है, इसका अपोजिट फेस इसके इधर का फेस है, तो इनकी एरिया भी आप निकाल सकते हैं। ये एरिया आप कैसे निकालेंगे, उसमें नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि अपोजिट फेस है। यूनिट वेक्टर में आपको पता है यूनिट वेक्टर अगर आप उसका अपोजिट यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो नेगेटिव आ जाता है क्योंकि डायरेक्शन की वजह से वो नेगेटिव दे देगा। क्लियर। सो अब हम देखिए तीनों फेसेस को हमने नीचे ड्रॉ किया हुआ है। सी वी हैव ड्रॉ ऑल द थ्री फेसेस फॉर योर, ये दिख रहा है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सभी को दिख रहा है? यस सर। तो देखिए इंक्रीमेंटल चेंज इन एरिया जैसे हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सरफेसेस का। देखिए ये हमारी एक सरफेस आ गई जो फ्रंट वाली हो गई ABCD, ये हो गई साइड वाली सरफेस BFGC, और ये अपर टॉप सरफेस हो गई उसी में, ठीक है, पैरेललोपाइड में मींस HGCD। अब आपको ये बस ध्यान रखना है कि जैसे ये वाली हमारी लेंथ, इंक्रीमेंटल लेंथ क्या थी, DY थी। आप डायग्राम में देख सकते हैं पीछे, ये हमारा इंक्रीमेंटल लेंथ इन DY था, ये DZ था, ठीक है। ऐसे ही ये DX था और ये DZ था, ये हमारा DY था और ये DX था, ठीक है। अभी जो डायग्राम हमने आप लोग को जब लेंथ का बता रहे थे तब हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अब जैसे आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपली। तो आप क्या करेंगे, DY को DZ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके लिए एरिया मिल जाएगा आपको बताइए, किस कोऑर्डिनेट का एरिया मिल जाएगा, किस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में एरिया मिल जाएगा। इसमें आपका जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ। कौन सा वेक्टर, क्योंकि ये YZ प्लेन है तो जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। और वो कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, X कैप होगा, AX कैप, क्योंकि देखिए AX की डायरेक्शन यही तो है, X की डायरेक्शन यही तो है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर इसका बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, DY इंटू DZ मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर क्या, AX कैप, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे इसके लिए देखेंगे तो इसमें देखिए आप, ये आपका DX है, ये आपका DZ है, देख सकते हैं ना आप यहाँ से, ये DX है ना, ये X एक्सिस है, तो ये आपका जो इंक्रीमेंटल लेंथ इधर की तरफ होगा वो DX होगा। ऐसे ये Z एक्सिस है तो ये DZ हो गया, ये Y एक्सिस है तो ये इधर Y होगा, तो ये आपका Y है। देखिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो DX इंटू DZ करेंगे, DX इंटू DZ, तो आपको एरिया अगेन मिल जाएगा किसके लिए, ये DX DZ प्लेन से कौन सा एरिया मिलेगा, Y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो DX DZ प्लेन आपको मिल रहा है यहाँ पे, और किस कोऑर्डिनेट पॉइंट का एरिया हमको मिल जाएगा, Y के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Y आपका इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा यूनिट वेक्टर AY हो जाएगा, दिस इज यूनिट वेक्टर AY, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी, देखिए यहाँ पे DX और DY, तो DX DY सरफेस हमारा ये हो गया, इस प्लेन का एरिया निकल आएगा और इसमें यूनिट वेक्टर हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा अपर डायरेक्शन में, और अपर डायरेक्शन किसकी है, Z की, तो AZ यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया निकलेगा वो क्या हो जाएगा, DY इंटू DX मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर दैट इज AZ। तो ये Z सरफेस की एरिया निकल आएगा, ये आपका Y के लिए निकल आएगा, ये आपका X के लिए निकल आएगा, ठीक है। और अगर आप इनके अपोजिट फेसेस को लेते हैं, जैसे इसका अपोजिट फेस इसके नीचे होगा, इसका अपोजिट फेस इसके लेफ्ट में होगा, इसका अपोजिट फेस इसके बैक में होगा, तो वो सब नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इफ यू टॉक अबाउट दिस, ये समझ में आ रहा है सभी को एरिया? हेलो, यस सर। ये देख सकते हैं DSX X निकाला X कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो DY DZ AX कैप आ गया, ठीक है। Y के कोऑर्डिनेट फंक्शंस में निकालेंगे तो ये Y के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये Y है, Y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो DX DZ AY कैप, इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे DX DY AZ कैप। तीनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तीनों को आप ऐड कर देंगे,
ये देखिए तीनों को ऐड कर दिया, dy dz ax कैप ds dz ay कैप dx dy az कैप। तो आपको कंप्लीट चेंज इन सरफेस एरिया मिल गया फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अगर आप इंक्रीमेंटल वॉल्यूम चेंज निकालते हैं कार्टेशियन में तो सिंपली क्या करना है, जितनी भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो इंक्रीमेंटल चेंज इन लेंथ है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है एक्स वाई जेड। तो डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, ये बात हो गई हमारी डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल सरफेस चेंज किसके केस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में। अब हम लोग बात करेंगे किसके केस में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, रो फाई और जेड, ये सभी को पता है। ठीक है, तो रो फाई एंड जेड हमारे क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में। ठीक है, तो अगर हम रो फाई और जेड डायरेक्शन में अगर हम इंक्रीमेंटल चेंज निकालते हैं तो क्या होगा, रो की डायरेक्शन में हमारा डी रो होगा, फाई की डायरेक्शन में डी फाई होगा, जेड की डायरेक्शन में डी जेड होगा। जेड हमारा दोनों में कॉमन है, कार्टेशियन और इसमें रेक्टेंगल सिलेंड्रिकल दोनों में कॉमन है। ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। सिंपली ये सिंपल सा ही डायग्राम है, बस थोड़ा आपको थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, बट देयर इज नो एज सच कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए ये हमारा फाई एंगल है। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ ये पी। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस पी पॉइंट का हमने यहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ किया नीचे की तरफ। ठीक है, वो यहाँ पे कहीं जाके मीट किया, इस पॉइंट को हमने यहाँ ओ से मिला दिया, ओ से मिला दिया, और ये एंगल हमारा क्या बन गया, फाई एंगल बन गया, जिसको हम एजीमुथ एंगल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। बाकी ये हमारा रो है, दिस इज द रेडियल एक्सिस रो, क्लियर। उसके बाद अगर हम रो की डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल चेंज की बात करेंगे तो डी रो हो जाएगा। ठीक है, फाई की डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल चेंज की बात करेंगे तो ये आपका डी फाई हो जाएगा। ठीक है, और जेड की डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल चेंज बात करेंगे तो डी जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ। इस तरह से हमने को डिस्कस किया था, अगर आपको लास्ट टाइम याद आ रहा हो। ये हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए थे, ये हमारा, मैं फिर से बता देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ये देखिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, कैसे हमने निकाला था एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। एक पॉइंट हमने यहाँ पी ले लिया, दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, एक पॉइंट हमने पी ले लिया, यहाँ पे पॉइंट हमने पी ले लिया, इस पी पॉइंट को हमने यहाँ से मीट कर दिया। ठीक है, इसको हमने पी बोला था। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया था नीचे की तरफ। ठीक है, और इस प्रोजेक्शन को हमने यहाँ इस प्रोजेक्शन को हमने यहाँ से मीट कराया था। देखिए इसको हमने ऐसे मीट कराया था। ठीक है, इस पॉइंट को हमने यहाँ से मीट कराया था, और ये एंगल हमने क्या लिया था, फाई। ये एंगल क्या लिया था, फाई। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ आपको बताया था, रो फाई, और ये आपका जेड ही हो गया। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसमें कंपोनेंट को निकालते हैं। जैसे ये हमारा जो रो निकालना है, तो रो का प्रोजेक्शन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, तो रो की डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल चेंज क्या हो जाएगा, डी रो हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आपको हमने इंक्रीमेंटल चेंज बता दिया। रो को अगर आप ऐसे सिमिलरली अगर हम फाई की बात करें तो फाई का जो चेंज होगा वो आपको इधर निकालना पड़ेगा। फाई आपका थोड़ा सा इधर बढ़ा, यहाँ पे ये हो गया डी फाई, दिस इज सपोज डी फाई। डी फाई निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये जो सॉरी ये जो चेंज। ठीक है, तो रो आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू चेंज इन एंगल इंटू रेडियल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका रो हो गया, ये आपका डी फाई हो गया, तो रो डी फाई हो जाएगा, दिस चेंज दैट इज व्हाट द इंक्रीमेंटल चेंज इन फाई। क्लियर, तो रो डी फाई आ जाएगा।
ऐसे रो की डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इंक्रीमेंटल चेंज डी रो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे किसकी, जेड की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? हेलो? क्योंकि ये दोनों लेंथ वेक्टर्स हैं। लेंथ वेक्टर में इंक्रीमेंटल चेंज क्या हो जाएगा, डी जेड डी रो। जेड भी लेंथ वेक्टर है, रो भी लेंथ वेक्टर है, क्लियर। लेकिन जो फाई है वो एंगल है, तो फाई का एंगल में चेंज, जो डी फाई निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो उससे आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको रो डी फाई मिल जाएगा, ये देखिए जो हमने निकाला यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सभी को? ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, हमने एक फाइल आपको शेयर करी थी, उससे हमने आपको बताया था, वो याद आ रहा होगा, इंक्रीमेंटल चेंज निकालने के लिए। हेलो? तो अगर हम कंप्लीट चेंज इन लेंथ निकाल, डीएल इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दीजिए, डी रो रो कैप प्लस रो डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड, जेड डायरेक्शन में फाई होगा, जेड के डायरेक्शन में जेड होगा, ठीक है। ये आपके यूनिट वेक्टर्स हो गए। और अब अगर हम बात करें इसका मॉड निकालेंगे अगर, तो मॉड क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी रो स्क्वायर प्लस जो भी यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मॉड मैंने क्या किया, उन्हीं के स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, तो मॉड वैल्यू आ गई, ये देख सकते हैं हम। अब अगर हम सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू रो, विद रेस्पेक्ट टू फाई, विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अलग अलग सरफेस लेनी पड़ेगी, जैसे भी हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिया था वैसे यहाँ भी लेंगे। तो वी विल टेक डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस, क्लियर, लाइकवाइज। तो आप देख सकते हैं एक सरफेस हमने ये लिया हुआ है, एक सरफेस ये लिया हुआ है, एक सरफेस ये लिया हुआ है, तो सभी को दिख रहा है, वी हैव 3 सरफेसेस नाउ, क्लियर। तो जैसे इस सरफेस की अगर हम बात करें, तो ये सरफेस आपका कौन सा सरफेस है, dz और रो डी फाई। रो डी फाई में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आपको आर्क दिख रहा होगा, दिस इज योर आर्क, आर्क दिख रही है, ये चेंज हो रहा है ना ये आर्क फॉर्म में। हेलो? ये देखिए, दिस इज योर आर्क, तो दिस इज चेंज इन डी फाई, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आर्क नहीं है, ये आर्क है, ये आर्क नहीं है, ये रो है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इंक्रीमेंटल चेंज इन, अब देखिए हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये जैसे पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट रो फाई जेड है, एक हमने पॉइंट थोड़ी दूर पे और लिया क्यू, क्यू पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए रो प्लस डी रो, क्यू प्लस डी फाइव प्लस डी फाइव और जेड प्लस डी जेड, मतलब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। कितना चेंज आया, डी रो डी फाइव डी जेड का, कहाँ से, पी से क्यू पे जाने में। तो वही हम पी से क्यू पे जो हमारा चेंज हो रहा है, पी पे जो कोऑर्डिनेट रो फाइव जेड थे, क्यू पे हमारे रो प्लस डी रो फाइव प्लस डी फाइव जेड प्लस डी जेड हो गया। तो जो इंक्रीमेंटल चेंज आया किसका, डी रो डी फाइव डी जेड का, वो हम क्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये देखिए, अब ये हमने यहीं से सरफेस लिया है, तो ये वाली जो सरफेस हो गई, रो वाली, रो के केस में सॉरी आर्क के केस में बात करेंगे तो रो डी फाइव, और ये जेड कोऑर्डिनेट है तो डी जेड चेंज हो गया। तो इस पे जो हमारा यूनिट वेक्टर पॉइंट होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। और कौन सा यूनिट वेक्टर पॉइंट होगा, जो दोनों से अलग होता है। तो अलग कौन सा हुआ, देखिए रो के कोऑर्डिनेट रो डी फाइव है, जेड के कोऑर्डिनेट डी जेड, जेड में चेंज डी जेड है, तो इन दोनों से अलग कौन हुआ, रो ही तो अलग हुआ। बताइए, ये तो रो डी फाइव आपका सर हो गया फाइव के लिए, डी जेड हो गया जेड के लिए, और रो हो गया रो के लिए, तो रो वाला पॉइंट हमारा बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे डी रो और डी जेड की, डी रो डी जेड कौन से हैं, ये और ये और ये, डी रो डी जेड ले लिया आपने, मीन्स रो और जेड कंपोनेंट ले लिया, तो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा जो बाहर की तरफ निकलेगा, वो थर्ड यूनिट वेक्टर होगा, वो कौन है, फाइव है। तो देखिए हम फाइव बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब जो दो को लेंगे दो सरफेस को, उसके बाद जो थर्ड वाला होगा वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे इसकी, मतलब रो डी फाइव और इसकी डी रो की बात करेंगे, ये रो डी फाइव और डी रो की बात करेंगे, तो थर्ड सरफेस आपकी जेड हो जाएगी, जेड एक्सिस में आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ये देखिए, ये आपका हो गया रो डी फाइव, क्योंकि कर्व सरफेस है, दिस इज आर्क एंड दिस इज डी रो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों सरफेस को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर रो यूनिट वेक्टर, फॉर फाइव एंड फॉर जेड, क्लियर। तो रो डी फाइव इंटू डी जेड मल्टीप्लाइड विथ रो कैप, डी रो डी जेड मल्टीप्लाइड विथ फाइव कैप, रो डी फाइव डी रो मल्टीप्लाइड विथ जेड कैप, और तीनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट सरफेस चेंज आपको मिल जाएगा, दैट इज डी एस कैप रो को, ठीक है। डी एस कैप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया डी एस कैप। ऐसे वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तीनों कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कौन से तीनों कंपोनेंट हैं,
एक कंपोनेंट ये रो का, फिर ये देखिए फाई का और ये जेड का, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिफरेंशियल चेंज वॉल्यूम आ जाएगा। समझ आ रहा है? कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं? तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत इंक्रीमेंटल चेंज निकालेंगे। इसमें लेंथ में सर्कुलर चेंज निकालना पड़ेगा आर डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्ट द रेडियल एक्सिस, थीटा दोबारा ज्वाइन करेंगे इसमें। आ जाइए सर आपकी आ रही है सर, अब सही आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग जब दोबारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस भी लूँगा, ठीक है? बाकी आप लोग अपनी अटेंडेंस इसमें मार्क भी कर दीजिएगा, सभी बच्चे जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं अपनी अटेंडेंस मार्क जरूर कर दीजिएगा इसमें चैट बॉक्स में, ठीक है? इज इट क्लियर? यस। अटेंडेंस मार्क जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू फर्दर, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें मैं बात कर रहा था आपसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की, आर थीटा पाई डी आर कोऑर्डिनेट पॉइंट में हम इंक्रीमेंटल चेंज कैसे निकालेंगे? तो ये लेंथ है तो इसमें डी आर हो जाएगा सिंपली, ठीक है? इंक्रीमेंटल चेंज इन लेंथ, मान लीजिए पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई, क्यू पे क्या हो जाएगा आर प्लस डी आर, थीटा प्लस डी थीटा, फाई प्लस लेंथ आर। तो आर निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या